हेलो फ्रेंड्स, मैं करिश्मा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल टेक्नोकैश में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स एज वेल एज प्योर एंड इम्प्योर फंक्शन। लेट्स सी। So first is nothing but actual parameter. The actual parameters are those that appear at the point of function invocation or function call. Function invocation is nothing but function call are called actual parameters. For example, class name is nothing but fun, opening closing curly braces, public static void main. In curly braces we write the code int x is equal to 10, y is equal to 20 and here we call the function, which function? add function को कॉल किया हम लोगों ने और उसमें पैरामीटर पास किए x, y विदाउट डेटा टाइप. तो दिस इज नथिंग बट योर एक्चुअल पैरामीटर्स. एंड public static void add, this is nothing but your add function int x, int y. And in opening closing curly braces here we do the addition of x plus y. So this is your what? Actual parameter. Next is formal parameter. The formal parameters are those that appear at the point of function declaration or function signature are called formal parameters. Actual parameters कब present रहते हैं? This is nothing but your function calling time and formal parameters function declaration. Similar example class name is nothing but fun, public static void main, here we declare the x and y variables. This is your function calling and this is your function actual parameters. Next is public static void add, this is your add function and int x, int y with data type. This is nothing but your formal parameters. This is your what? Function declaration as well as function signature. And opening closing curly braces, here we do the what? Addition x plus y. Okay, got it? This is your difference between the actual and formal parameters. Next is pure functions. The functions that return a value when it is a invoke. मतलब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है कब? when it is a invoke मीन जब कॉल होता है तब. Pure function is one that takes object and a primitive data as an argument but does not modify the objects. Okay, मतलब pure function में क्या होता है? It pass the primitive data as an argument but does not modify the object. Object के state में कुछ भी changes नहीं आता. This is nothing but your what? Pure function. Example, public int factorial and int a. This is nothing but your which function type? Return data type with parameter list. Here we do the find the factorial of number. Okay, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है? रिटर्न f किया है, मतलब जिसमें factorial store है this variable. So why here we return statement use? Because here return data type is nothing but integer instead of void. That's why here we use the return keyword. Next is nothing but your impure function. The function that do not return a value when it is a invoke. मतलब जब function call होता है it does not return the value. An impure function on other hand modifies the state of its object or arguments. So modify the state of its object means जो भी object में variable store है, state is nothing but properties, arguments, तो उस arguments का state change हो जाता है. Okay, value change हो जाती है. तो this is nothing but your impure function. Similar example, here we calculate the factorial of number. So void instead of int, here we use the void. Void means does not return the value. This is your without return type with parameter list function type. Okay, so यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था? प्योर फंक्शन में रिटर्न f किया था. अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिंट द f. system.out.println f हम लोग वेरिएबल क्या करें? प्रिंट करें और यहाँ पे रिटर्न करें. So this is nothing but your pure and impure functions. So let's see the programmatically how to implement the pure and impure function as well as how to use the actual and formal parameters. Using the which software? BlueJ software. Take a new class. Here we give the function name pure. So class pure, public static void main, string args, ओके, ये हो गया मेन फंक्शन. अभी प्योर फंक्शन के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? विद रिटर्न टाइप विद पैरामीटर लिस्ट. यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं दो वेरिएबल्स में. सो हियर वी टेक द इंट सब फंक्शन दिया हम लोगों ने
and here we take the two parameters int a comma int b. ओके अभी मुझे क्या करना है, वेरिएबल के अंदर वो सब्सट्रैक्शन स्टोर करना है. सो हियर वी टेक द वन इंस्टेंस वेरिएबल्स, सपोज int s. ओके, इनिशियल वैल्यू ऑफ s 0. सो s इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस b. अभी किस में हमारा रिजल्ट स्टोर है, s में. सो हियर वी नीड टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ s बिकॉज हियर वी यूज द डेटा टाइप. रिटर्न डेटा टाइप इज नथिंग बट योर इंटीजर. ओके, ये हम लोगों ने किया कैलकुलेशन. अभी मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा मेन फंक्शन के अंदर. सो हियर वी नीड टू क्रिएट द व्हाट, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. सो प्योर इज इक्वल टू ob इज इक्वल टू न्यू प्योर class name, object name is equal to new class name. This is your syntax. Okay, then how to call the function, object name dot function name. Okay, this is your parameterized function. So here we pass the value, suppose 6 comma 5 comma 3. ओके, ये तो कॉल किया फंक्शन को हमने, बट हियर वी रिटर्न द वैल्यू. सो वी नीड टू स्टोर द वैल्यू इन वन वेरिएबल, अदरवाइज डायरेक्टली प्रिंट इन टू वेज. ओके, मतलब इस फंक्शन को हम लोग वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं, अदरवाइज वी डायरेक्टली प्रिंट दैट फंक्शन. सिस्टम डॉट आउट डॉट println. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया. आया इतना समझ में? दिस इज योर प्योर फंक्शन, नो सिंटैक्स एरर. 2 5 माइनस 3 इज नथिंग बट 2. ये क्लियर करते हैं. अभी प्योर फंक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का स्टेट मतलब डज नॉट मॉडिफाई द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाउ, देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विद द सेम पैरामीटर लिस्ट. यहाँ पे हम लोग मैसेज देते हैं सब इज नथिंग बट सब्सट्रैक्शन इज. ओके, सिमिलर टू ये भी. मतलब when we use the same object with the same parameter list then does not modify the state of object. See here, sub is to मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, नहीं. अगर हम लोगों ने इस s वेरिएबल को भी प्रिंट किया तो भी ये क्या करेगा, सेम ही वैल्यू रिटर्न करेगा. ओके, अभी s को कैसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट s. वाई, बिकॉज दिस इज योर इंस्टेंस वेरिएबल और ये हम लोग कहाँ पे कॉल कर रहे हैं, स्टैटिक फंक्शन में कॉल कर रहे हैं. नो सिंटैक्स एरर. प्रीवियस वाला क्लियर करना चाहिए था, आउटपुट क्लियर करते हैं और फिर से कॉल करते हैं, मतलब समझ में आएगा. ये देखो सब इज टू, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, वो s वेरिएबल कॉल किया है जिसमें वैल्यू स्टोर है. दिस इज नथिंग बट योर इंस्टेंस वेरिएबल. सब इज नथिंग बट अगेन टू, मतलब यहाँ पे हमारा जो स्टेट है ऑब्जेक्ट का वो चेंज नहीं हुआ. मतलब सी हियर देखो, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सब इज ओबी डॉट सब फंक्शन को कॉल किया. ओके, 5 and 3 वेरिएबल किस में स्टोर हो गए, a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई. s इज इक्वल टू 5 माइनस 3, मतलब यहाँ पे s की वैल्यू क्या है, अभी 2. रिटर्न क्या हुआ, s, मतलब 2 वैल्यू रिटर्न हो गई. ऑब्जेक्ट में सब फंक्शन कॉल किया था, वहाँ पे a एंड b वेरिएबल थे, उसमें सब्सट्रैक्शन हो गई, मतलब s में ob ऑब्जेक्ट में s वेरिएबल स्टोरेज में कितनी वैल्यू रिटर्न हो गई है, 2 वैल्यू. ओके, सिमिलर टू वही हम लोगों ने s अभी फिर से कॉल किया, देन अगेन वैल्यू रिमेन सेम ही है. चेंज हुआ क्या उस स्टेट में, ऑब्जेक्ट के स्टेट में, नहीं. फिर से हम लोगों ने क्या किया है, उसी फंक्शन को कॉल किया विद द सेम वेरिएबल वैल्यू, तो भी चेंजेस है क्या, नहीं है. मतलब प्योर फंक्शन में डज नॉट मॉडिफाई द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन वी यूज द सेम वैल्यू ऑफ सेम ऑब्जेक्ट. ओके, विद द सेम वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल. तो दिस इज नथिंग बट योर प्योर फंक्शन. मतलब इसमें कुछ साइड इफेक्ट है क्या, नहीं है. दिस इज योर प्योर फंक्शन. गॉट इट. नेक्स्ट इज नथिंग बट इन प्योर फंक्शन
here we give the IMP, okay, control A control X, class IMP, main function public static void main, then string args, ओके ये हो गया मेन फंक्शन। इन प्योर फंक्शन में क्या होता है, विदाउट रिटर्न डेटा टाइप विथ पैरामीटर लिस्ट। ओके तो यहाँ पे हम लोग कौन सा प्रोग्राम करने वाले हैं, हियर वी टेक द वन वेरिएबल एंड इंक्रीमेंट दैट वेरिएबल बाय पर्टिकुलर वैल्यू। सो सपोज हियर वी टेक द वन वेरिएबल वॉइड एंड हियर यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन लिया और यहाँ पे एक पैरामीटर लिया, दिस इज माई लोकल वेरिएबल, और यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल के वैल्यू हम लोग क्या करने वाले हैं, पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ इंक्रीमेंट करने वाले हैं। ओके so n is equal to what, n plus a, otherwise n plus a is equal to, so same, मतलब n plus is equal to a is nothing but your n is equal to n plus a, मतलब इस तरीके से लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या किया, वो वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। अभी यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना है, दिस इज योर नॉन स्टैटिक फंक्शन, सो हियर वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। IMP obj is equal to new input. Okay, how to call obj dot add. Here we need to pass the value. Suppose here we pass the 6. ओके यहाँ पे हम लोगों ने कॉल किया, बट ये n को प्रिंट किया है क्या, नहीं। सो हियर वी नीड टू प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, वैल्यू इज प्लस n। ओके हियर वी अगेन कॉल दिस फंक्शन with the same value। ओके मतलब यहाँ पे मैंने फिर से वो फंक्शन कॉल किया विद द सेम वैल्यू। अभी हमें देखना है कि n में चेंजेस हो रहे हैं क्या, नहीं। कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। ओके दिस इज योर प्रीवियस आउटपुट प्रोग्राम, क्लियर किया हम लोगों ने। ओके वैल्यू इज 6। फर्स्ट जब हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया तो n की वैल्यू क्या है, 6 है, और फिर से कॉल किया तो n की वैल्यू क्या है, 12 है। मतलब हमारे ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज हो गया। सी है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फंक्शन को कॉल किया ऑब्जेक्ट के थ्रू, यहाँ पे 6 वैल्यू पास की, फंक्शन कॉल हुआ, दिस इज योर व्हाट, विच पैरामीटर, दिस इज योर एक्चुअल पैरामीटर। तो ये एक्चुअल वैल्यू कहाँ पे कॉपी हो गई, ए में कॉपी हो गई। फिर यहाँ पे दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मल पैरामीटर, कॉपी होने के बाद n इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या थी, इनिशियली हम लोगों ने 0 किया था, तो 0 + 6 इज नथिंग बट योर n में अभी क्या स्टोर है, 6 वैल्यू स्टोर है, तो ये 6 वैल्यू प्रिंट हो गई। obj.n मतलब अभी obj.n में उस स्टेट में क्या वैल्यू स्टोर है, 6 है। अभी हम लोगों ने फिर से फंक्शन कॉल किया, ओके तो यहाँ पे फिर से 6 वैल्यू पास हो गई, बट अभी n के इसमें क्या वैल्यू स्टोर है हमारी 6, तो 6 + 6 इज नथिंग बट 12। तो अभी obj.n में क्या वैल्यू है, 12 है। मतलब इन इनप्योर फंक्शन मॉडिफाई द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब वेरिएबल की वैल्यू में क्या हो गए, चेंजेस हो गए। तो दिस इज नथिंग बट योर इनप्योर फंक्शन। Word it, pure and impure function as well as formal and actual parameter. If any doubt, please write in comments. Thank you.